बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डिस्कस किया था बार बेंडिंग शेड्यूल जो कि रिलेटेड था स्लैब से। टुडे टॉपिक इज रिलेटेड टू द bar bending schedule of beams and columns. As all of us know that in the RCC or frame structure we have different type of uh, structures like slab, column, beam, and staircase. So, as far as our course outline or content is concerned, we have to learn the bar bending schedule of slab, columns, and beams. In the last lecture, we have studied the slab, and I have told you how to calculate the number of bars, cut length, and different type of the steel bars we use, and how can we calculate the total weight of that steel. So today we are going to study about the columns and beams. So first of all, before starting the lecture, we should have some knowledge about the main bars and the stirrups regarding the beam. I hope you guys have studied the RCD2 and RCD1 course, in which we have to design the slab, columns, and beams. And if you have studied that course, so it is quite possible that you are well aware of all these things, like what are the main bars and what are stirrups, why they are provided, why the bends in the stirrups are given, and all these stuff. So today I will be going through an overview of different beam members and the components, and after that we will be discussing how can we calculate the steel uh, weightage. Okay. So when we talk about the beams, beam is a basically member which is made up for controlling the bending. So load is usually applied vertically or perpendicular to its plane, and it has to control the movements. Uh, so basically, we have two type of bars in it. Simple one. One is main reinforcement. The second one is the stirrup. Main reinforcement are provided to uh, control the bending moment. So usually, if we have singly reinforced beam, then we have to provide the reinforcement main bars only in the lower portion. Okay, tension zone. And when we are dealing with the doubly reinforced beam, then we provide uh, main bars both on upper and the lower side. So I hope all of you are well aware of it. What are doubly reinforced beams, what is singly reinforced beam, because you have to design these things during your RCD course. So to control the shear, we use the shear reinforcement, or that is called stirrups, which are usually provided to control the shear in the shear forces that are produced in the beams. So mainly what we have to do here is to calculate the weightage of the main reinforcement along with the weight of the steel that has been used as a stirrup. So that was a 3D view. I hope all of you understand this. This is the plan view, or simply you can say the section side view. This is the section which we usually prefer to look upon, which gives us the idea of total number of bars that have been placed up and down, and what are their dia, and what is the spacing of the stirrups. So all these things are clear when we have the sectional view of this. Look at it there. There have been shown four bars as we can see in the 3D view, and four bars upward, four bar downward, but number of bar has not been written. I mean bar dia, bar designation that has not been written anywhere. And when you talk about the stirrup spacing and the bar number is usually mentioned in the drawings. I will be showing you some of the drawings of beams that are in plane and also in the cross-sectional view. Okay, so let's go to the further discussion. If anyone you have worked in the field during their internship or any other project which they have worked, they probably have looked this type of things going around the field. तो ये बेसिकली हो क्या रहा है कि व्हेन यू ड्रॉप डाउन द बीम, जब आप बीम इसमें ड्रॉप करने लगते हैं, तो बिफोर दैट उनको ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पट्टियों की जो सपोर्ट देकर ऊपर रखा जाता है ताकि स्टील फिक्स उसको सही तरह से फिक्स कर ले, उसके बाद इनको ड्रॉप किया जाता है।
क्योंकि बीम जो है ये आपको नज़र आ रही होगी शटरिंग, ये शटरिंग को सेट की गई है फॉर स्लैब। तो बीम आमतौर पर स्लैब से नीचे होते हैं, तो ये जगह जो है खाली इनके अंदर ये बीम चले जाएंगे, उसके बाद स्लैब कॉस्ट की जाएगी। मोनोलिथिकली कॉस्ट किया जाता है वो स्लैब एंड बीम्स को। सो मेन स्टील बार का मैंने आपको बता दिया। मेन स्टील बार यूजली बेंडेड, उनको बेंड किया जाता है टू प्रोवाइड आपको एंकर लेंथ का अगर पता हो आइडिया कि एंकर लेंथ क्या होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं बीम्स के अंदर, ये भी एंकर लेंथ भी निकाली जाती है बीम आपके स्टील की आरसीसी के अंदर सिखाई जाती है। और ये इससे प्रोवाइड की जाती है कि जब आपके पास स्टील जो है जॉइंट्स के ऊपर आता है, जहाँ पे आपके कॉलम और बीम का जॉइंट होता है, तो वहाँ पर बीम के अंदर आपके स्टील की इतनी लेंथ होना ज़रूरी होती है कि अगर आप उसको बाहर खींचें, पुल आउट करें, तो वो बाहर ना आए। उसके लिए उस लेंथ को हम डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हैं, एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं, इसके डिफरेंट नाम हैं। तो कभी कभी जो है बीम वो इस तरह का होता है कि इस शेप में, लाइक आप प्रोवाइड करेंगे बीम को इस तरह और वो इधर आके बेंड होकर, जैसे इस शेप में आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर वाला बीम टॉप वाला ये यहाँ से आ रहा है और इस तरह बेंड हो रहा है, ये चीज़ भी होती है। और कभी कभार लाइक दिस पिक्चर अगर आप देखें, इस तरह बेंड है, जो नीचे वाला आ रहा है वो ऊपर की तरफ बेंड है। इस पिक्चर के अंदर भी आपको येलो कलर के बार नज़र आ रहे होंगे, जो मेन रीइंफोर्समेंट हमारी चल रही है, ये एंड पे आके कॉलम के अंदर जॉइंट होता है, तो दे आर मूविंग अपवर्ड। सो आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं क्योंकि ये भी स्टील की लेंथ है। इफ़ यू इग्नोर ऑल ऑफ द 3 और 4 इंचेस इन ईच बार, तो ये कितने बार होंगे, और अगर आपने ये 4 4 इंच समझ के छोड़ दिया, इट विल बिकम आई थिंक मोर देन 100 या 200 300 kgs एट द एंड। तो उस सब के पैसे आप नहीं दे रहे, इसका मतलब है कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टील के अंदर इन चीज़ों का ख्याल करना होता है कि बार की लेंथ कितनी है, और वो आपको ड्राइंग से ही पता लगती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बेंड अप बार प्रोवाइड किए जाते हैं टू कंट्रोल द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एट द जॉइंट। आपके जॉइंट होते हैं कॉलम और बीम के, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से बीम आता है और ये कॉलम, इस जगह पर आपके जॉइंट में जो बीम है इसमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है ड्यू टू पंचिंग, आप उसको कहते हैं पंचिंग इफेक्ट जो होता है हमारा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो कि हमारी आमतौर पे आती है इन द स्पोर्ट्स, उसको कंट्रोल करने के लिए हम अपना जो स्टील होता है उसको टॉप पर भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो ये तरीका है जो मैंने आपको इसमें सिखाया कि टॉप बार अलग दे दें, बॉटम बार अलग दे दें। कभी कभार ऐसा भी एक चीज़ देखी जाती है कि लोग बॉटम बार 4 दे देते हैं, टॉप पे बार देते नहीं देते, 2 ही देते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं जब स्पोर्ट आए तो उनको बेंड करके ऊपर ले आया जाए और फिर ऐसे प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो वो क्या प्रेफर करेंगे कि एक बार यहाँ से आएगा, इधर से ऊपर चला जाएगा और इधर आके इस तरह बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस जगह पर इस पोर्शन में एंड ऑफ द बीम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है एंड वी नीड रीइंफोर्समेंट इन द अपवर्ड सेक्शन। तो हम लोगों को जो बेंड मिलेगा उसका फ़ायदा ये है कि इस जगह पर हमें उस टाइम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए होती, क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स कम होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो हम नेगेटिव मोमेंट के लिए कंट्रोल करने के लिए टॉप पे हम बार्स दे देते हैं। सो अगर इस तरह की चीज़ आपके पास है तो यू हैव टू कैलकुलेट दी लेंथ अकॉर्डिंगली। तो सिंपल लेंथ जो सीधी सीधी है वो तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बट व्हेन यू हैव बेंड एंड हुक्स तो फिर आप क्या करेंगे, तो यू हैव टू अप्लाई द डिफरेंट फार्मूलाज फॉर द कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल जिस तरह की ये वाली आपको मैंने दिखाई थी, इसके अंदर अगर आपको मेन बार की लेंथ मालूम करनी है, इट इज़ क्वाइट सिंपल, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट बार है लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वाले की बात करें, इसमें भी आप देखें डायग्राम में ये कुछ इस तरह चल रहा है, जो बार ऊपर वाले आ रहे हैं बेंड हो रहे हैं नीचे आके इस तरह। तो जब बार आपके बेंड होना शुरू हो जाएंगे लाइक इन दिस केस, ये केस या ये वाला केस, तो इस केस में आप लेंथ कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए होते हैं। तो व्हेन वी आर डीलिंग विद द लेंथ, वी प्रोबेबली लुकिंग टू द शेप ऑफ बार विच आर बीइंग प्रोवाइडेड इन द बीम। तो आपको उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द डायमीटर ऑफ द बार। दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आपको पता ही होगा कि विच डायमीटर ऑफ विच बार नंबर विच बार डिजिग्नेशन हैज़ बीन used in the drawing, so you will be using the diameter of that bar accordingly। अच्छा जी, अगर आपने स्ट्रेट बार की लेंथ मालूम करनी है, दैट इज क्वाइट सिंपल। अगर उसके अंदर बेंड आ जाते हैं लाइक दिस, ये बेंड आप देख रहे हैं इसमें,
अगर ये बैंड आ जाए तो फिर आप लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका तरीका ये है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो तो लेंथ आपने ले ही लेनी है, ठीक है। जैसे कि ये लेंथ यहाँ पर शो हो रही है, तो ये लेंथ आप ले लेंगे, पूरी कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब बात आती है इस पोर्शन की, ये जो पोर्शन है इधर, इतना पोर्शन जो बेंड हो रहा है और आगे जा रहा है, इसके लिए क्या तरीका है कि जो बेंड आपका इस तरह का होगा उसको हम 4D ले लेंगे, ठीक है। 4D किस तरह के डायमीटर का 4 टाइम आप इसको वैसे भी आगे वो करते हैं, और इसकी हाइट भी 4D के बराबर ही बेंड की जाती है। तो हम इसको जब कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे लेते हैं इसका, कि अगर एक तरफ बेंड हो तो हम दैट इज कॉल्ड 9D। 9D आप प्लस कर लेंगे इसकी लेंथ में एक तरफ के लिए। जब दोनों तरफ की बारी आएगी तो 9D इधर का 9D उधर का, तो टोटल कितना हो गया 18D। तो इस तरह की बार्स के अंदर जब आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो व्हाट यू हैव टू सिंपली डू, यू हैव टू सिंपली ऐड 9D प्लस 9D फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। ये उस सूरत में है कि जब आपने इसका जो बेंड है वो भी 4D ऊपर करना है और आगे भी इसको 4D ही निकालना है। तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी हुक की, ये हुक है, ये जो मुड़ी हुई है, ठीक है, दिस इज हुक। तो द लेंथ ऑफ हुक इज गिवन बाय 9D। 2 क्यों लिखा हुआ है कि यहाँ पर भी हुक है इधर भी हुक है। तो टोटल लेंथ के अंदर जब आप 9D प्लस 9D करेंगे तो आपके पास टोटल बार की लेंथ आ जाएगी L फॉर द लेंथ ऑफ बार जो कि सिंपल थी, और 9D प्लस 9D 18D बन गया फॉर 2 हुक्स। तो जो टोटल आपकी लेंथ आएगी बार की दैट वुड बी L प्लस 18D। अच्छा जी, अगर आप डील कर रहे हैं ऐसे बार को जो कि दोनों तरफ से हुक भी बना रहा है लाइक दिस, और ये बीच में बेंड भी हो रहा है, जो मैंने अभी आपको केस दिखाया था 45 डिग्री का बेंड इसको मिल रहा है, चलते चलते बीच में ये बेंड लेके चला गया ऊपर। तो उस सूरत में आप इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? उस सूरत में ये होगा हुक के लिए तो 9D सेम ही रहेगा क्योंकि हुक्स बिल्कुल सेम है। 9D प्लस 9D इसका कर लें आप लेंथ के अंदर। टोटल लेंथ आपकी इस कोने से इस कोने तक है, ये लेंथ हो गई आपकी। लेंथ के अंदर आपने जब 9D प्लस 9D किया तो हुक्स भी होगी। अब ये एरिया सिर्फ रह गया आपका ये, ठीक है जी। इसमें आप क्या लिखेंगे कि इसको आमतौर पे हम मोस्ट प्रॉब्ली जो लेते हैं 45 डिग्री का बेंड दिया जाए तो उसको भी हम डी से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डी इज़ नॉट डाया, ठीक है, ये इंश्योर कर लें। स्मॉल डी यहाँ पर डाया है, लेकिन 0.4D ये वाला जो डी है ये बेसिकली ये लेंथ है, हाइट जो आपने इसको बेंड करके ऊपर की तरफ भेजना है। अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पर जो डी है ये इसका आपने देखना होगा कि कितना बेंड हुआ। तो 0.42 इंटू दिस डी कर देंगे आप, तो ये जो आपका बेंड अप हुआ है इसका भी आपके पास आ जाएगा। दिस इज फॉर वन साइड, अगर बेंड अप हुआ है बार फ्रॉम वन एंड ओनली। तो ये कैसे लेंथ निकलेगी एल इसकी पूरी लेंथ बाहर बाहर से 18D फॉर 2 हुक्स, 2 हुक्स आपकी आ गई, और 0.4D अगर बेंड अप एक तरफ से हुआ है, डी उसकी हाइट जितना बेंड किया 0.42D। अब जनाब ये तो था अगर एक तरफ बेंड हो। अगर आपके पास सिचुएशन आ जाती है दोनों तरफ बेंड वाली, ये देखें अगर आप इधर भी बेंड दे रहे हैं और इधर भी बेंड दे रहे हैं, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली जो लेंथ है ओवरऑल वो ले लें पहले, उस लेंथ के अंदर 2 हुक्स जमा करें 18D, और फिर आपका 0.42 एक तरफ का था ना, 0.42 कैपिटल डी एक तरफ के बेंड के लिए था, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ का बेंड भी हमारे पास आ गया। तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ एल जो मेन थी वो 18D 2 हुक्स के लिए, और 2 इंटू 0.48D दोनों तरफ बेंड अप बार के लिए आपने इसको मजीद कर लिया, तो ये आपको टोटल लेंथ दे देगा बार की। वंस यू हैव द लेंथ व्हाट यू हैव टू सिंपली डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय द यूनिट वेट, तो आपके पास वेट ऑफ स्टील आ जाएगा। नाउ अगर आपके पास ओवरलैप ऑफ बार है, फॉर एग्जांपल ये बार आपको नजर आ रही है, एक बार ऐसे जा रही है और दूसरी बार इसके अंदर ओवरलैप करके किस तरह लगाई जा रही है, तो फिर क्या होगा, उसके लिए आपको ओवरलैप ऑफ बार की लेंथ भी ज़रा देख लें। ये 40D से लेकर 45D तक होती है आमतौर पे, ठीक हो गया। तो इसकी आप कैसे निकालेंगे, इसमें एक लेंथ है पूरी बार की अलग, और दूसरी इसके अंदर आपकी है 40D या 45D, इसके बीच में कोई भी रेंज हो।
इसके अंदर आपने सिंपली क्या जमा कर देना है, 2 18D। तो आपके पास जो लेंथ के अलावा वाला पोर्शन है ये वाला, ये सारा पोर्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए स्टीरअप्स के ऊपर या हुक्स के ऊपर, जिसको हम आमतौर पे, इसको हम स्टीरअप भी बोलते हैं ना, टाइज बोलते हैं। स्टीरअप इन टर्म्स, इन केस ऑफ बीम इसको स्टीरअप कहते हैं, इन केस ऑफ कॉलम इसको टाइज कहते हैं। ये इसमें भी हुक प्रोवाइड की जाती हैं 45 डिग्री बेंड के साथ। अगर तो ये इस तरह का हो तो आपने करना क्या होता है, आपके पास हुक की 2 लेंथ होती है ना, एक ब्रेड्थ है, एक उसकी हाइट है, L1 और L2। तो इफ़ यू हैव स्टीरअप जिसके अंदर हुक है, तो स्टीरअप आमतौर पे आपकी इसी शेप की होती है ना। इसके अंदर क्या होता है, आपकी एक साइड को हम L1 ले लेंगे, इस साइड को हम L2 ले लेंगे। तो ये बन क्या जाएगा, बेसिकली आपने इस पूरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली इस सारे की लेंथ फाइंड आउट कर लें, मतलब एक तरफ से शुरू करें चलना, तो ये लेंथ फिर ये लेंथ फिर ये और ये, इसको जमा कर लें आपस में, 1 2 3 4, तो लेंथ आ जाएगी। पीछे सिर्फ आपके पास हुक्स बच जाएंगी 2, तो हुक को आप अलग से भी ले सकते हैं। इन 2 हुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन 2 की। तो एक तरीका तो ये है कि आप उस तरह चले। दूसरा ये है कि आप हुक की जो लेंथ है उसको अलग ले लें, और वो यहाँ पर कैलकुलेशन लिखी हुई है। तो जो आपकी एक हुक है ये होती है 12D, 12 × D। जो बार आप डाया यूज़ कर रहे होंगे, जो भी बार का डाया है, ये हुक की लेंथ होगी 12 × D। तो अगर ये 2 हुक्स हैं, 1 और 2, तो फिर आप इसको करेंगे 12D + 12D, 24D बन जाता है। D फॉर डायमीटर ऑफ द बार। ये आप इसमें ऐड कर लें इसकी टोटल लेंथ के अंदर। टोटल लेंथ आप कैसे ले सकते हैं, L1 एक साइड है, L2 दूसरी साइड है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों साइड्स कवर हो गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों साइड्स कवर होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 × L1 + L2 दिस वन प्लस 24D दिस वन। इसमें आपने बेसिकली करना क्या है, 24 डायमीटर इसके अंदर मजीद ऐड कर देना। 24 डायमीटर क्या चीज़ है जी, ये आपके जो हुक्स हैं उनकी लेंथ हमारे पास आ जाती है इस तरह से। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ ऐसे स्टीरअप हैं जो कि ऊपर से बंद नहीं हैं, बल्कि उनकी शेप इस तरह ही है, सिंपल जाके ऐसे इस तरह के होते हैं, आमतौर पर फील्ड में आपको देखने में मिल जाएंगे। तो इन दिस केस आपको क्या करना होगा कि जो ये लेंथ है ये और ये एक लेंथ L1 तो एक दफ़ा यूज़ हो रही है, इसको एक दफ़ा ले लेंगे, L2 दोनों तरफ है, दिस वन प्लस दिस वन, तो L1 + 2 × L2 कर लेंगे पहले। ये तो आपके पास लेंथ आ गई। और जो हुक्स हैं ये 2, इन हुक्स की अगर स्टीरअप हो तो उसके अंदर तो हुक की लेंथ हम लोग लेते हैं 12D एक हुक की ना, और 2 की हो जाती है 24, लेकिन यहाँ पर हम 14D लेंगे इस हुक की लेंथ, अगर ऊपर से ओपन है तो 14D है, 14D है, 28D हो गया। तो 28D को जमा कर लें इस हुक की लेंथ में, L1 + L2 इधर, L2 इधर, ये आपके पास टोटल लेंथ आ गई हुक की। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स थी जो आपको जनरली पता होना चाहिए कि कभी कभी इस तरह के बैंड्स आ जाते हैं। जब ये बैंड्स आ जाए तो आपने क्या करना है ये देखिएगा। ओके, ये तो तब है जब आपके बैंड बिल्कुल यूं हो, लेकिन इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, बीम के अंदर हम इस तरह के बैंड्स भी दे देते हैं, लाइक दिस, चलते चलते इस तरह हो जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ थी ये तो इस तरह होगा तब ये बैंड अप्लाई होगा। तो इस तरह के बैंड के लिए आप मतलब ये वाला फार्मूला 18D या दूसरा को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपल चल रहे हैं जिसके अंदर आप फुल बैंड नहीं करते, 90 डिग्री का बैंड देते हैं इस तरह, तो उसमें आपको सिर्फ ये लेंथ पता होनी चाहिए साइड वाली, जितनी ये लेंथ आपको बोली जाए, आप बस टोटल लेंथ के अंदर यहाँ से यहाँ जो लेंथ है उसके अंदर इस वाली लेंथ को आपने सिर्फ जमा कर लेना। फॉर एग्जांपल एक स्टील है, आपको बोला गया कि जी ये जो जिस तरह ये बैंड है येलो वाला ये नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये बोला जाएगा कि जी आपकी लेंथ है 10 फुट और 6 इंच का आपने बैंड देना है बस। तो आप कितनी लेंथ लेंगे, 10 फुट + 6 इंच। इस तरह आपने सिंपल काम करना है। इन केस अगर बैंड इस तरह का है तो फिर आप उसके अंदर 18D वाली सिचुएशन लगा सकते हैं। सिंपल बैंड के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है वो वाला यूज़ करने की। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं भी सच बता रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द बीम, अब हम थोड़ा सा बीम्स को देखते हैं। जब हम बीम की बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ ड्राइंग,
तो स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर जो आपके पास प्लान होता है उसमें बीम कैसे नजर आते हैं। कल मैंने आपको स्लैब की ड्राइंग दिखाई थी, आज मैं आपको बीम्स की दिखा रहा हूँ। तो कॉलम तो आमतौर पे ये आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे होंगे स्क्वायर, ये तो कॉलम्स हैं, ठीक है। ये एक लिफ्ट है जिसके अंदर बताया गया कॉलम इस तरह के होंगे, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स ये कॉलम शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो इस तरह चल रहे हैं ये देखें B1 B2, ये देखें B1 फिर इधर भी आ गया, फिर ये B1 यही कंटिन्यू हो रहा है पूरा, यानी कि थ्रू आउट ये B1 चल रहा है, ठीक हो गया। और ये थ्रू आउट B2 चल रहा है ये। अब ये इससे हमें लेंथ का अंदाजा हो जाएगा यहीं से कि लेंथ कितनी होगी जी बीम की। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए ये पूरा बीम इसकी लेंथ कितनी है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे सेंटर से, ठीक है। और सेंटर के आगे भी बताया गया है कि 6 इंच है। इस सेंटर से इस सेंटर तक लेंथ पता है, उस सेंटर से इसके सेंटर तक 20 फुट है, ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ। फिर अगला है 9.6, और अगर आप आउट टू आउट जाते हैं तो ये लिखा है 40 फुट ऊपर लिखा है कि इस कोने से, ये ग्रिड लिखी हुई है ना, ए बी बी ए बी बी, दिस इज सी एंड डी, ये ग्रिड्स इस तरह चल रही है वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है 1 और 2। ये ड्राइंग के अंदर आमतौर पे क्यों दिया जाता है, आपने ड्राइंग्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग आमतौर पे किसी जगह को लोकेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के इस कोने को मैंने लोकेट करना है, तो मैं ड्राइंग में कैसे लिखूंगा जी कौन सा कोना है, मैं उसको बताऊंगा डी, ये देखें यहाँ से ये डी और यहाँ से 1। मैं जब लिखूंगा D1 तो पढ़ने वाले को ये चीज़ क्लियरली समझ आ जाएगी कि मैं किस जगह के बीम की बात कर रहा हूँ या बिल्डिंग में किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम ग्रिड्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ इसी ड्राइंग में इस कॉलम की, तो मैं इसे कैसे बताऊंगा, मैं बोलूँगा जी B2, इसका मतलब क्या हो गया B2, बी में यहाँ से आओ 2 में यहाँ से आओ, तो ये कॉलम है जी जिसकी बात हो रही है। ये तो हो गया एक पॉइंट के लिए। अगर मैं बीम की बात करना चाहता हूँ इस पूरे बीम की, यहाँ से इस कॉलम से स्टार्ट होकर इस कॉलम तक, तो फिर मैं इस बीम को क्या नाम दूंगा, बीम कहाँ से कहाँ तक, तो मैं इसका सिंपल जवाब क्या दूंगा, B2 से लेकर, यानी कि B2 ये वाला पॉइंट था ना, B2 से लेकर C2 तक, दिस पॉइंट। तो मैं बीम को क्या लिखूंगा, फ्रॉम B2 टू C2। तो पढ़ने वाले को इजीली समझ आ जाएगी कि ये बंदा इसकी लेंथ इस जगह से लेकर इस जगह तक ले रहा है। तो जब हम वर्किंग ड्राइंग्स देखते हैं साइड पे, तो उनके अंदर ग्रिड्स ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ग्रिड्स का यूजेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इसका पता होना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो ग्रिड्स का आई होप आपको आइडिया हो गया कि हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे लोकेट करते हैं। अब अगर मैं बीम को चेक कर रहा हूँ B2 को, तो यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी क्लियरली मेंशन है 12/21। इसका मतलब है बीम का क्रॉस सेक्शन जब हम देखेंगे तो 12 इंच इस तरह, 21 इंच इस तरह। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि आपको प्लेन के अंदर बीम का क्रॉस सेक्शन नज़र नहीं आता, यहाँ पे हमें सिर्फ बीम की लेंथ मिल रही है, हमें ये नहीं पता लग रहा कि बीम के अंदर कौन सा स्टील यूज़ हुआ है, सिर्फ लेंथ मालूम हो रही हैं, ठीक है। डायमेंशन तो मिल गई, लेंथ भी मिल गई, ये देखें ऊपर से लेंथ, हर एक ग्रिड की लेंथ लिखी है जितना मर्जी आप। अगर आप इन दोनों बीम्स को देखना चाहते हैं तो 9.6 ले लें, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आ जाते तो 20 ले लें, ओवरऑल बीम लेना तो 40 फुट ले लें। लेकिन ये तब तक हमें नजर नहीं आएगा जब तक हमें दो ड्राइंग्स ना दी जाए, एक इसका क्रॉस सेक्शन ना दिया जाए, दूसरा इसका जो व्यू है साइड व्यू वो ना दिया जाए। तो यहाँ देखें जी ये इसका आ गया है फिलहाल साइड व्यू। साइड व्यू किस तरह है कि हम इस बीम को इधर से खड़े होकर देख रहे हैं इस तरफ से, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, क्रॉस सेक्शन होता है बीम को काट के देखना, ये हम बीम को साइड से देख रहे हैं। तो बीम को जब इस साइड से आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है ए, ये कॉलम है पूरा, फिर बी पूरा कॉलम, बी ए इसी तरह एक्सटेंड होता जाएगा। ये बहुत बड़ा है लेकिन हम सिर्फ इसको अभी इधर तक देख रहे हैं, सिर्फ इतनी जगह, ठीक है जी। तो अगर इस बीम की आप बात करें तो इसमें आप लोगों को सब कुछ नज़र आ रहा होगा। अब बीम में होता क्या है कि आपके पास होती हैं कुछ टॉप बार, कुछ होती हैं डाउन बार। टॉप बार और बॉटम बार देखने के लिए होती मेन रीइंफोर्समेंट, ये देखें, ये बैंड देख रहे हैं, ये ऐसे चल रहा है, ये जो एक बार चल रही है थ्रू आउट, दिस इज योर मेन बार जो कि बॉटम में है, ठीक है। इसी के ऊपर देखें एक और बार इस शेप में आ रही है इन्वर्टेड, और ये भी थ्रू आउट चल रही है।
ये आपकी टॉप बार है, ये आपकी बॉटम बार है, दोनों मेन बार। इसके अलावा कुछ बार्स हैं जो कि आपको अलग नज़र आ रही होंगी, लाइक दिस। ये देखें, इसकी लेंथ इतनी सी है। उसके बाद अगली एक बार है जिसकी लेंथ सिर्फ ये है, फिर एक और लेंथ है इसी तरह की। ये बेसिकली आपकी वो बार्स हैं जो मैंने आपको भी बताया था नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के तौर पे यूज़ की जाती हैं, या तो बिल्कुल किनारों पे दी जाती हैं, या जहाँ पर कॉलम बीम का जॉइंट होता है। ये देखें, यहाँ पर कॉलम और बीम का जॉइंट है, तो ये ऊपर की तरफ थोड़े से एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब भी हमें क्लियर नहीं हुआ कि कितने इसके अंदर टोटल बार है, तो हम अब ड्राइंग को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे बॉटम बार को, ठीक है। अच्छा, इससे पहले देख लें बीम का साइज यहाँ पर फिर गिवन है 12 बाय 21, और ये बीम का साइज इधर से शुरू होकर इधर तक लिखा गया है 21 इंच, ठीक है। अब ज़रा देख लें ग्रिड्स को, तो ग्रिड मैंने आपको बताया था ए से बी कितना था, 9 फुट 6 इंचज़, और उसके बाद आगे चल के बी से बी ए या जो भी है। तो फिलहाल हम इसके अंदर सिर्फ दो उनको देखेंगे। पहला, यहाँ पर जो आपका मेन बार चल रहा है, बॉटम बार, इससे रिलेटेड डिटेल ये लिखी हुई है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीन तीन बार हैं टोटल, और कौन से वाले बार हैं, नंबर 3/4 इंच वाले। इसका मतलब क्या है जी, कि बॉटम में 3 बार पड़े हुए हैं और हर बार 3/4 इंच का है, यानी कि नंबर 6 बनता है ये। ठीक हो गया, ये चीज यहां से क्लियर हो गई हमें कि हर एक बार ये 3, और ये डाया का निशान है ऐसे करके जो डालते हैं 3/4 इंच। अब आ जाए टॉप, ऊपर वाले बार देखें। ऊपर वाले बार्स की यहाँ से आप देखें तो ये लाइन नजर आ रही है लगी हुई। ये क्या बता रही है कि ऊपर 2 बार हैं और हर एक बार है नंबर 3/4 इंच। तो अगर इस तरह एक चीज लिखी है तो उसका मतलब क्या है कि 2 बार हैं नंबर 6 के ऊपर, 3 बार हैं नंबर 6 के नीचे। ये तो आपकी होगी मेन रीइंफोर्समेंट। अब जरा आ जाएं आप जो एक्स्ट्रा बार हमारे डले हुए हैं, ये एक्स्ट्रा बार डला हुआ है, ये एक्स्ट्रा बार डला हुआ है, ये एक्स्ट्रा बार ऊपर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डली हुई है। इसकी डिटेल कहाँ पर गिवन है, इसकी डिटेल भी यहीं पर गिवन है। अगर आप और से देखें तो इस बार के ऊपर यहाँ लाइन लगा के ये शो किया गया, ठीक है। EXT भी लिखा हुआ है इसमें, एक्स्ट्रा बार, EXT फॉर एक्स्ट्रा। तो टॉप पे जो आपके एक्स्ट्रा बार लगाए गए हैं ये भी कितने हैं, 2 हैं, 2 एक्स्ट्रा बार हैं। और कौन से वाले हैं जी, नंबर 6 के। या 3/4 इंच लिख लें या नंबर 6 लिख लें, जैसी भी आप लिखेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। आमतौर पे साइड की ड्राइंग्स में 2 नंबर 6 ऐसे ही लिखा जाता है, 2 लिख के आगे हैश डाल कर नंबर 6, यानी कि 2 बार इसके अंदर नंबर 6 वाले लगे हुए। ये तो आपकी बॉटम बार भी हो गया, टॉप बार भी हो गया, एक्स्ट्रा बार भी हो गया। अब ये वाला भी एक्स्ट्रा बार लगा हुआ है, ये 2 एक्स्ट्रा बार भी लगे हैं, ये भी 2 ही हैं और नंबर 4 के हैं। लेकिन इनकी लेंथ कितनी कितनी है, मेन और टॉप की तो हमें लेंथ पता है, जो आपके छोटे छोटे बार हैं ना टुकड़े, इनकी लेंथ ये लिखी है, ये देखें 2 फुट 6 इंच लिखा हुआ है कि ये वाला जो आपका चलेगा ना बार, ये वाला, ये कितना आगे आएगा सपोर्ट से, कॉलम के इस फेस से, ये कॉलम के फेस से 2 फुट 6 इंच आगे आएगा ये भी। और जो इधर वाला था जो कॉलम से एक तरफ चलता है फिर कट जाता है, तो ये कॉलम के इस तरफ जब होगा तो ये 3 फुट आगे आएगा, उस तरफ होगा तो 2 फुट आगे आएगा, कॉलम के फेस से आगे, बीच से गिनते रहे, कॉलम खत्म होते ही ये 3 फुट तक आगे आएगा, ये 2 फुट तक आगे आएगा। ये आपके हो गए बॉटम बार, टॉप बार, एक्स्ट्रा बार। इनकी लेंथ भी मैंने बता दी है, इनके साइजेस नंबर्स भी बता दिए कि कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, और कौन से नंबर के हैं ये भी इसके अंदर क्लियरली मेंशन है। आमिर 2 मिनट में एक चीज़ और समझा के फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ, ये याद रखिएगा क्वेश्चन अपना। तीसरी चीज़ इसके अंदर स्टीरअप्स हैं, ये देखें आपको ये बार नज़र आ रहे होंगे, ये कोई लाइन ऐसे नहीं लगी हुई, ये आपके बार शो हो रहे हैं भाई। तो इन बार्स के अंदर क्या क्या चीज़ शो हो रही है देखें। इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्टीरअप्स आपके पढ़ने हैं, स्टीरअप, ये स्टीरअप यहाँ से यहाँ तक जो होंगे ये होंगे नंबर 3 के स्टीरअप, नंबर 3/8 या 3 कर लें, और एट द रेट ऑफ 4 इंच सेंटर टू सेंटर।
इसको ऐसे क्यों लिखा है हमने 4 इंच सेंटर टू सेंटर, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलोंग द लेंथ। इस पिक्चर में अगर आप देखें ये स्टीरप्स लगे हुए हैं, ये इस तस्वीर में देखें तो ये स्टीरप्स हैं। ये स्टीरप्स भी हमें गिनने पड़ते हैं जैसे हम स्लैब के सरिये को गिनते हैं नंबर, तो इसलिए इनकी स्पेसिंग लिखी जाती है, ठीक है। और नंबर ऑफ बार्स जो मेन बार होते हैं उनके नंबर ऑफ बार्स लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि ये नंबर 6 का सरिया है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या लिखूंगा बॉटम में, क्या लिखूंगा मैं बॉटम में लिखूंगा 4 नंबर 6 के बार्स, और टॉप पे क्या लिखूंगा, टॉप पे भी 4 ही है तो मैं लिखूंगा 4 नंबर 6 बार्स। ये होगा मेन के लिए। लेकिन जब मैं स्टीरअप के ऊपर आऊंगा तो स्टीरअप में गिन तो नहीं सकता, स्टीरअप तो फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है जैसे मैंने स्लैब के लिए की थी। तो मैं उसके लिए क्या लिखता हूँ, स्पेसिंग लिखता हूँ कि ये नंबर 3 का बार होगा और इसकी स्पेसिंग होगी एट द रेट ऑफ फॉर एग्जांपल 6 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि ये एक दूसरे से 6 इंच के फासले पर होंगे। तो नंबर ऑफ स्टीरअप से मुझे वैसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जैसे मैंने स्लैब में सरिया कैलकुलेट किया था, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है नंबर 4 एट द रेट ये 3/8 इंच एट द रेट ऑफ 4 इंच सेंटर, इसका मतलब है इतने लेंथ तक ये 4 इंच की स्पेसिंग से होगा। जब उससे आगे आप आएंगे, असल में आपने पढ़ा ही होगा शेयर फोर्स कॉलम के पास ज़्यादा होती है इस एरिए में। तो जब कॉलम के पास ज़्यादा होगी तो स्टीरप्स वहाँ पर ज़्यादा प्रोवाइड होंगी, जल्दी जल्दी करीब करीब। तो करीब कैसे होंगी, स्पेसिंग कम कर दें, करीब करीब आ जाएंगी। जैसे ही आप बीम के दरमियान में आते हैं, ये बीम का दरमियान है, यहाँ पर शेयर फोर्स कम हो जाती है, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो उस वक्त हमें स्टीरप्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, उधर सारा लोड आपके मेन स्टील ले लेना होता है। तो वहाँ पर स्टीरअप हम एक दूसरे से दूर कर देते हैं। दूर करने का क्या तरीका है, स्पेसिंग बढ़ा दो। तो ये सेंटर में देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपकी जो स्पेसिंग है नंबर 3 बार ही है, लेकिन स्पेसिंग 6 इंच सेंटर टू सेंटर हो गई। जो स्पेसिंग यहाँ पर 4 इंच थी वो यहाँ पर 6 इंच हो गई है। तो ये जी आपकी ड्राइंग में इस तरह कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। एक लास्ट चीज़ ले लूँ फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। आपको अभी भी इस चीज़ की समझ ऐसे नहीं आएगी जब तक आप क्रॉस सेक्शन व्यू नहीं देखेंगे। ये आपने लॉन्ग सेक्शन देखा है एक साइड से, ठीक है। अब इसको काटना है हमने हमने बीच में देखना, तो हम कहाँ से देखेंगे, तो हम क्रॉस सेक्शन को काटते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं, देखिए 1A इधर लिखा हुआ है 1A, हम क्रॉस सेक्शन इधर से काट रहे हैं। हम यहाँ से काट के बीम को देखेंगे 1A, सेक्शन 1A नाम होगा इसका, और एक हम काट रहे हैं इस जगह से बीच में से, इस सेक्शन का नाम है 1B। तो 1A में क्या नजर आएगा, आपके 3 बार नजर आएंगे। एक वो बार जो कि आपके बॉटम में चल रहा है, एक टॉप में चल रहा है, एक एक्स्ट्रा बार है, ये 3 नजर आएंगे आपको, ठीक है कि कितने कितने। सेंटर वाले में आपको जो ए वाला है इसमें एक बॉटम नजर आएगा, एक टॉप नजर आएगा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B भी आपस में डिफरेंट होंगे। तो इस पे जरा नजर मारें, ये देखें, ये सेक्शन है सेक्शन 1A, दूसरा है सेक्शन 1B। ये जी बीम क्रॉस सेक्शन आपके सामने आ गया है। 1A मैंने कहा था 1A, इसमें देखें अगर आपको याद हो ये 12/21 के थे, 12 फुट इसकी चौड़ाई है, 21 इंच इसकी पूरी डेप्थ है, जिसमें से 6 इंच है स्लैब का। ये 6 इंच नज़र आ रहा है, 6 इंच की स्लैब है बाकी आपको, लेकिन बीम को हम स्लैब के समेत ही गिनते हैं। तो अब क्रॉस सेक्शन में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि 3 बार पड़े हुए हैं, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर 6 के बार, या नंबर 6 लिखते हैं या इसका डाया लिखते हैं। तो हम इसको नंबर 6 भी लिख सकते हैं, 3/4 इंच भी लिख सकते हैं। मैं अगर आपको दूंगा तो मैं इस तरह लिखूंगा 3 नंबर 6 बार, इस तरह लिखा होगा, ठीक है। अब आ जाए टॉप के ऊपर। टॉप पे यहाँ पर चूंकि एक्स्ट्रा बार भी था और टॉप बार भी था, तो इसलिए 2 + 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 टॉप बार 2 एक्स्ट्रा बार, और दोनों की जो डाया है वो सेम है, ये नंबर 6 के हैं। फिर आ जाए स्टीरअप के ऊपर। स्टीरअप में क्या लिखा हुआ है, ये स्टीरअप थी ना आपके बीच में, यहाँ पर देखें इसका लिखा हुआ डिटेल, ये 3/8 इंच का सरिया है ये, और 4 इंच की स्पेसिंग है। ये तो हो गया सेक्शन 1A जो कि बीच में था यहाँ पर तीनों। अब आ जाए 1B पे, जिससे सिंपल आपको टॉप और बॉटम ही नजर आना है। 1B में क्या है जी, सेक्शन 1B अगेन 12/21 का बीम है ये टोटल, 6 इंच चला गया स्लैब में। इसकी निचले 3 जो बार्स हैं ये हैं नंबर 3 बार हैं,
और हर एक बार 6 इंच वाला है, सॉरी नंबर 6 का बार है, 3/4 इंच आया वाला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 नंबर 6 बार। अच्छा, टॉप पे देखें तो अब सिर्फ 2 नज़र आएंगे, 2 बार हैं, हर बार नंबर 6 का है। और स्टीरअप्स यहाँ पर स्पेसिंग जैसे मैंने आपको बताया, ये चूंकि सेंटर में था, स्पेसिंग यहाँ पर डिफरेंट है। 3 इंच का बार है, 3/8 इंच का बार, और 6 इंच सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है। तो ये था आपका बीम क्रॉस सेक्शन। अब 1 मिनट से कम रह गया है। नेक्स्ट हम जब अपना सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं आमिर का क्वेश्चन एक लूँगा और जो पूछना चाह रहे थे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वापस आएँ और सेशन को फ़ौरन ज्वाइन करें। मैं भी स्टार्ट करने लगूँ सेशन दोबारा नेक्स्ट। ओके, फ़ौरन आइएगा।